respected former Deputy Chief Minister, Mr. Pilot, my dear friends Avinash and Jameel, delegates and students, my best wishes to all on the 75th year of independence, which also happens to be the 75th year of the Clarks Group of Hotels. इस भव्य जमीन के सदस्य, हजारों पेड़, पक्षी और जीवों की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं. We warmly welcome you all to the Retro Legacy Hotel, Clarks Amer, the first five-star of Rajasthan, which also happens to be one of the most environment-friendly MICE destinations. We, the Clarks Group, are privileged to collaborate with Talk Journalism. We have a shared mission of promoting free speech and journalism through this event. The idea of tourism is to encourage people to explore different parts of the world, experience local cultures while being sustainable. This inspired us to launch Bridge. Bridge is a hospitality brand with a mission to create an ecosystem of sustainable tourism by keeping the habitats intact while economically uplifting the local communities. We would like to conclude by thanking the government of Rajasthan for supporting this event and declaring the most tourism-friendly budget in the recent decades. From giving tourism industrial status to allowing farmers to convert their land for free, this budget will definitely help in generating more employment. The Clarks, Bridge, and Vox Foundation families welcome you all to Talk Journalism. Thank you, Anand. Thank you for the kind words. And I extend a very warm welcome to Mr. Sachin Pilot, the former Deputy CM of Rajasthan, to take time out of schedule and come to the event. So it's a pleasure to have you. I thank my friend Rahul Srivastav for coming in and starting the first session after a long gap of 2.5 years. And a big thanks to the Clarks Group for allowing us to come into the city. Guys, just one small thing, a lot of things are said about journalism, the way our media is swinging, but it's our endeavor to start this event so that you people who would be the journalists of tomorrow do your work as fairly as possible and keep the torch burning, because journalism is the need of the hour and we need to be strongly asking questions to the powers that be, because if journalists don't ask questions, nobody will. So with this thought, let me have the honor of welcoming Mr. Sachin Pilot, who started as a trainee journalist at the BBC and now is at a position where we all journalists run behind him to get his bites and interviews. Mr. Pilot and Rahul, please, over to you. I thank and bless Talk Journalism. I have Sachin with me. I have an anecdote to tell that, there are a lot of young journalists, a lot of senior journalists here, and how the kinship should be there between everybody. That there is a story that in early 90s, I got my first telephone connection from the office. और उन दिनों टेलीफोन कनेक्शन ऐसा था कि जैसे प्रभु मिल जाएं आपको, तो आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे. तो मैं एक दिन अपने टेलीफोन के कनेक्शन के लिए उतरे. राहुल जी, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स. एंड अब आप उम्र की बात शुरू कर दी आपने कहा पहले आप कम ग्रे बाल थे, अब आपके ज़्यादा हो गए हैं. आपने लोगों को बता दिया कि आपसे मैं मिला 28 साल पहले जब मैं 16 साल का था. लेकिन भाषण देने का कोई ना तो पहले अनुभव था और ना कभी इच्छा थी. लेकिन मुझे याद है जब पहली बार मैं डोली कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उन दिनों में ये जिप्सी गाड़ी नई नई आई थी. तो मैं उस गाड़ी में चुपचाप पीछे की सीट पे बैठा हुआ था. मैं स्कूल में पढ़ता था.
तो वहाँ पे चुनाव प्रचार में सर्दियों के दिन में सुबह सुबह 9 बजे होंगे, तो वो गांव में मीटिंग थी, तो वहाँ का जो सरपंच थे उन्होंने वहाँ ये कहा कि रमा जी के साथ उनके बेटे भी आए हैं, तो मुझे बुला लिया। मैं झेप खाता हुआ चला गया, मंच पे बैठ गया पेड़ के नीचे। अब उसने मेरे हाथ में माइक थमा दिया कि अब ये आपको संबोधित करेंगे। अब मेरा सांस आधा ऊपर आ, तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहा। मैंने 1.5 या 2 मिनट बात करी होगी, हाथ जोड़ के वोट मांगा पार्टी के लिए, मेरी मदर के लिए, और मैं बैठ गया और मुझे लगा कि मैंने पौने घंटे का भाषण दिया है। तो वो पहला अनुभव बड़ा, पहली बार माइक से भाषण दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने माइक कभी थामा नहीं, लेकिन वो पहला अनुभव था 1990 का मेरा। तो ये घुटने हिलने कब बंद हुए? वो मैं उम्र कम थी और समझ भी कम थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने एक निर्णय लिया कि मुझे राजनीति में जाना है, तो फिर मैंने लोगों को संबोधित करना शुरू किया सोच के समझ के। और जब भी मैं कोशिश करता हूँ राहुल जी, मैं जब लोगों से संवाद करता हूँ, भाषण देता हूँ, तो मेरे फादर भी कहा करते थे कि अगर जो बात बोलनी है वो पेट से बोलनी चाहिए, हम गले से बोलते हैं तो वो लोगों की उतरती नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई एंड स्पीक व्हाट आई फील, एंड अगर आप सच बोलेंगे और समझ के बोलेंगे, लोगों की आंख में आंख डालकर बोलेंगे, तो कुछ भी नहीं हिलता, ना घुटने ना कुछ और, यू फील वेरी कॉन्फिडेंट। ये पेट से बोलने की बात जो है ये थोड़ी खतरनाक होती है। क्यों? मुझे याद है कि एक बार सीताराम केसरी जी से पूछा गया था, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, वो केसरी जी बोलते कम थे और मुस्कुराते ज़्यादा थे। तो उनसे जब पूछा गया कि राजेश पायलट साहब के तेवर बहुत हैं, तो उन्होंने कहा था कि गर्म खून है, ठंडा हो जाएगा। तो ये परेशानी आपके साथ भी मैं देख रहा हूँ कि जो पेट पे है, ये राजनीति में कला होती है कि जो पेट में है वो चेहरे पे ना आए, आपके आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी फौज में थे और वो अक्सर कहा करते थे फौज में ट्रेनिंग दी जाती है कि जो मन में आए उसको बोल देना चाहिए, और राजनीति में ये ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि जो मन में हो वो कभी बोलना नहीं चाहिए। तो आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा राहुल जी कि मैं राजनीति में भी हूँ और फौज में भी हूँ। तो जब मुझे ठीक लगता है मैं अपनी भावनाओं को प्रकट करता हूँ, जब मुझे अनुकूल नहीं लगता है तब मैं थोड़ा ठहर के समझ के बोलता हूँ। ये कितना आसान रहा था सफ़र? देखिए, राजेश पायलट जी स्क्वाड्रन लीडर बने और उन दिनों जिस इलाके से आप लोग आते थे वहाँ कम होता था ऐसा। एक समय पे लुटेंस दिल्ली में उन्होंने दूध बेचा, दिल्ली में फोर्स बने। आज तक ये कहा जाता है that he was one of the prime minister India could not have. ये एक तरफ तो आरोप लगता है डायनेस्टिक वंशवाद, ये वंशवाद कितना भारी बोझ है आपके लिए और कितना आसान बनाया इसने आपके लिए रास्ता? दोनों बातें हैं कि वंशवाद क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पूंजी खुद के निर्णय से किसी और को सौंप दे और उसको लोगों को मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़े, मैं उसको वो परिभाषा में समझता हूँ वंशवाद के दायरे में आ सकती है। लेकिन राजनीति में, अधिकांश जगह राजनीति में क्या होता है कि आपको अगर अपने आप को साबित करना है तो जनता के समक्ष जाना पड़ेगा और बार बार जाना पड़ेगा। आपका अगर कोई परिजन राजनीति में है तो आपको एक पहचान मिल सकती है, आपको एक इंट्रोडक्शन मिल सकता है, आपके लिए कुछ दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन अंत में लोकतंत्र में आपको जनता के बीच खड़ा होना पड़ेगा और तमाम उम्मीदवारों के बीच में जनता की मोहर आप पे लगेगी, तब आप निर्वाचित होकर आएंगे। और मान लीजिए एक बार आप निर्वाचित हो भी गए तो दूसरी बार अगर आप काम नहीं करेंगे या लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाएंगे तो आपको दोबारा को जिताने वाला नहीं है। इसलिए राजनीति में वंशवाद, मैं अपने आप को मानता हूँ, जब मेरे पिता जिंदा थे तो मैंने कभी राजनीति में आने का या राजनीति करने का सोचा नहीं था, और उनके गुजरने के कई सालों के बाद मैंने निर्णय लिया कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के, कोई जज्बात में आके निर्णय नहीं लिया था, और मैं खुश हूँ। हालांकि राजनीति में आप जानते हैं कि उतार चढ़ाव आते हैं और समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि लोगों से जुड़ने का, लोगों के बीच रहने का, उनके लिए काम करने का, और किसी के जीवन को अगर हम 1% भी परिवर्तित कर सकते हैं सकारात्मक रूप से, आई थिंक इट्स वर्थ द एफर्ट। तो मुझे फ़ख्र होता है कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पर हम लोगों को जड़ों से जुड़े रहना बचपन में सिखाया। मेरे पिताजी राजनीति में रहे, बड़े पदों पर रहे, लेकिन उनका जुड़ाव, लगाव, भावनात्मक, सामाजिक एक जो ताना बाना था, उसको उन्होंने कभी भूलने नहीं दिया और हमें भी भूलने नहीं दिया, क्योंकि बचपन में अगर नींवें नीचे बढ़ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वो
जो संस्कार हैं, जो सीख है, जो अनुभव, अच्छा मैं कुछ भी बोलूं लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे काम को देखेंगे ना। लोग बातों को कम सुनते हैं, काम को ज़्यादा देखते हैं। तो संस्कार, काम और व्यवहार वो तो देखने से मिलता है। इसलिए मैं बड़ा, आपने कहा कि बोझ है या लाभ है, मैं समझता हूँ ये हम कहाँ पैदा होंगे हमारे हाथ में बात नहीं है, लेकिन मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे घर में जन्म मिला जहाँ पर लोगों का बहुत मुझे असीम प्रेम और आशीर्वाद है। और अब आगे मुझे क्या करना है वो मेरे माँ पिता और माँ के ऊपर निर्भर नहीं है, वो मेरे पे निर्भर है। सो व्हाट आई डू विद व्हाट आई हैव इज डिपेंडेंट ऑन मी, नॉट ऑन पीपल हु गिव मी बर्थ। Member of Parliament at 26, Minister at 31, Congress President, State President at 36, Deputy CM 40. बुलेट ट्रेन है कैरियर आपका। देखिए मैं फिर कहता हूँ, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं है। तो अब तक जो कुछ मेरे को आप लोगों ने दिया है, पदों पर मैं रहा हूँ, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हमें अपनी जो कामयाबियाँ हैं या अपनी जो सफलताएं हैं उन पर संतुष्ट होकर बैठना चाहिए। और जीवन में राहुल जी एम्बिशन होना बहुत ज़रूरी है। ओवर एम्बिशियस होना मैं समझता हूँ हो सकता गलत हो, लेकिन जीवन में अगर आपके पास टीस नहीं है, आपके पेट में आग नहीं है, भूख नहीं है कुछ हासिल करने की, कुछ पाने की, कुछ साबित करने की, कुछ प्रमाणित करने की, तो फिर वो जीवन में रस भी नहीं है। इसलिए और पब्लिक लाइफ में क्या है कि हर चीज़ इससे नहीं नापी जाती है आपके पास पद क्या है। पद तो बहुतों के पास है, इस देश में पद बहुत लोगों के पास है, लेकिन कितने लोगों ने जनता का मन जीता है, कितने लोगों ने लोगों के दिलो दिमाग पर राज करने की कोशिश की है। पद से कलम साइन कर कर हम अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर, लोगों की इमेजिनेशन में कितने जन नेता अपने आप को बिठा पाते हैं और अपनी एक छाप छोड़ना। पद पर रहते हैं, उतर जाते हैं, फिर आ जाते हैं। इस देश में 800 एमपी होंगे, 60-70 मंत्री होंगे, 30 मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अपने कामों से, अपनी पहचान से लोगों के जहन में एक अमिट छाप छोड़ना, मैं समझता हूँ वो सबसे मुश्किल काम है। You contested from a seat which is said to be what is called a non-dominant seat for your own caste group, that non-Gujar जिसे कहते हैं। आप अजमेर जीत गए, उसके बाद आप चुनाव हार गए, लेकिन आपने वो किया जो अमूमन पॉलिटिक्स में लोग नहीं करते हैं कि ज़ौक साहब की बात पकड़ लेते हैं कि कौन जाए दिल्ली की गलियां छोड़ के, आप राजस्थान वापस चले आए। देखिए 2013 में हम लोग चुनाव हारे राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार, हम चुनाव हार गए थे। उस समय मैं केंद्र में मंत्री था और संसद में था। तो उस समय मुझे राहुल जी ने कहा कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए राजस्थान का। हम लोग 21 विधायक रह गए थे 200 में से, और चुनाव लोकसभा के आने वाले थे, लेकिन मैंने बहुत सोच समझकर इस जिम्मेदारी को कबूल किया था। और फिर मैंने सोचा अगर कुछ करना है तो फिर पूरी शिद्दत से करना चाहिए, आधे मन से काम करने का फ़ायदा नहीं है। और काम करके, मेहनत कर कर अगर उसका परिणाम अनुकूल नहीं है तो उसका भी मज़ा नहीं है। तो जिस दिन मुझे जिम्मेदारी मिली 2013 दिसंबर में शायद, या 14 की जनवरी में मुझे अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस पार्टी का, वो दिन और दिसंबर 2018 का दिन, 5 साल तक मैंने हमारी पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पूरी ताकत और संबल उनसे भी लिया और उनको दिया। और जितना हम कर सकते थे मेहनत, उससे ज़्यादा हमने कर दिखाया। इस बात का इतिहास भी गवाह है और प्रदेश के लोग भी जानते हैं। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि एक बड़े विकट समय में, एक बड़े गंभीर परिस्थिति में जब मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, उसके बाद एकदम से लोकसभा चुनाव हुए। और राहुल जी, बहुत लोग इस बात को जानते नहीं हैं, जब 2014 के चुनाव हुए, मुझे अध्यक्ष बने 3 महीने हुए थे और हम 25 की 25 लोकसभा सीट हार गए। मैं अपना चुनाव भी हार गया था। तो उस समय मैं अजमेर में काउंटिंग के बाद, जब पहली बार मैं, हार क्या होती मुझे पता नहीं था, मैं पहली बार चुनाव हारा, मैं जयपुर पीसीसी कार्यालय में आया, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब उसमें अपनी हार को स्वीकार करना पड़ा। प्रदेश में जो हार हुई उसको मैंने स्वीकार किया, मैंने उसकी जिम्मेदारी ली क्योंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष था। मैं अगले दिन दिल्ली गया और मैंने लिखित रूप में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को अपना इस्तीफा दिया। मैंने कहा, मैडम, आपने मुझे अध्यक्ष बनाया था 3 महीने पहले, लेकिन आज चुनाव हम हारे हैं, एंड somebody must take responsibility. So I, as president, I say I am not offering lip service, I am giving you my resignation, and I gave it to her. मैंने दिया उनको। उन्होंने उस रेजिग्नेशन को लिया, इस्तीफे को। मैंने कहा, सचिन, आपको 2 महीने हुए नहीं अध्यक्ष बने,
और मैं नहीं समझता हूँ कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, आप इसको वापस लीजिए और दोबारा जाकर वहाँ पे पार्टी को जड़ों से मजबूत करिए। उन्होंने मुझे कहा, उस समय की बात है, मैंने कभी बात किसी को बताई नहीं, लेकिन मुझे लगा कि अगर एक जिम्मेदारी दी है और उसमें कहीं कमी आई है तो समवन समवेयर द बक स्टॉप्स समबडी, वो राजनीति में होना चाहिए, तो अकाउंटेबिलिटी जिसको बोलते हैं। तो फिर मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, मैंने कहा मैम ठीक है आप बोल रहे हैं, मैं जाके दोबारा काम करता हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। फिर लगातार चुनाव हुए, पंचायत समिति के, नगर पालिका के, जिला परिषद के, वहाँ फिर बाई इलेक्शंस हुए, फिर हम लगातार जीतते गए और मैंने से काम किया। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, राहुल, इज दैट in elections and politics and public life, you have to lead by example. I can't expect others to do what I won't do. मैं अगर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मैं दिन में सिर्फ 6 घंटे काम करूँगा, तो मैं अपने जिला अध्यक्ष से कैसे उम्मीद करूँगा कि 12 घंटे काम करेगा? बट सचिन, उसमें एक पॉइंट आता है, यू वर्कड हार्ड, यू टुक द पार्टी टू अ पोजिशन वेयर इट डिफीटेड द बीजेपी, दो इट्स अ वेरी साइक्लिकल थिंग इन राजस्थान। आप कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आपने कॉन्फ्लिक्टिंग वोट बैंक्स और डेमोग्राफिक्स को एक साथ एकजुट किया, मीनाज हैं, गुजर्स हैं, जो साथ में वोट नहीं करते थे, उनको जोड़ के लाए। A lot of credit for the 2018 win was being given to you. मगर उसके बाद accountability is also needs to come with rewards. उस 2018 के चुनाव के बाद से तो आपका तो खाया ना पिया, गिलास तोड़ाया आठाना हो गया। दोबारा बोलो, खाया ना पिया? खाया ना पिया ना गिलास तोड़ाया आठाना, यानी यू लॉस्ट द डिप्टी सीएम पोस्ट, यू लॉस्ट द स्टेट चीफ पोस्ट, एंड नाउ अब आपके पास एक परेशानी और बड़ी है कि आपके पास एक जिंक्स है 25 साल का कि कभी भी कांग्रेस दोबारा रीइलेक्ट नहीं होती है। तो अब आपकी परेशानी ये है कि जब आप, जिन लोगों ने आपको पिछली बार जीत में मदद की थी, उनके भी एस्पिरेशंस है। आपने कहा कि एस्पिरेशन के बिना आदमी बेकार है, वोटर के भी एस्पिरेशन है, डेमोग्राफीज के भी एस्पिरेशन है। तो जिन्होंने पिछली बार जिता के भेजा वो कहेंगे भाई आपके पास तो गिलास भी नहीं है। और इसी बात को मैं कई बार राहुल जी कह चुका हूँ पहले भी कि राजस्थान में सरकार रिपीट होती नहीं है, 98 से तो हुई नहीं है। तो एक बार कांग्रेस जीतती है, एक बार बीजेपी जीतती है, और हम लोगों को ये आत्मचिंतन करना चाहिए। और इसके बारे में अनेकों बार मैंने जयपुर में, दिल्ली में पार्टी में बात भी करी है कि हम लोगों को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट दोबारा रिपीट हो। और ऐसा नहीं है राहुल जी कि कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होती है। दिल्ली में शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तो 3 बार हमारी सरकार बनी वहाँ पर। असम में तरुण गोगोई साहब मुख्यमंत्री थे, 3 बार सरकार वहाँ पर भी बनी। हुडा साहब हरियाणा में थे, 2 बार वहाँ बनी। तो सरकार रिपीट होती हैं। लोग कहते हैं कि साहब नवीन पटनायक कई बार रिपीट हो गए, मध्य प्रदेश में 3 बार बीजेपी की रही, छत्तीसगढ़ में 3 बार बीजेपी की रही। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रिपीट नहीं होती, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है इसके बारे में विस्तार से मैंने अपनी राय रखी है। और मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारे पास अच्छा मौका है कि जो अगले 15 महीने बचे हैं इसमें हम लोग कुछ ऐसा करें कि लोगों का विश्वास दोबारा जीता जा सके। उसके लिए जो कुछ भी करना है, ये मेरे पार्टी के अंदर की बात है। मैंने अपने विस्तार से अपनी राय, अपना फीडबैक 1.5-2 साल पहले दिया है, पूरी रूपरेखा मैंने बनाकर दी है। और मुझे लगता है कि अगर हम उस रास्ते पर चलें और उस रास्ते पर हम निकल पड़ें, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कदम नहीं उठे हैं, उठाए भी हैं, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट दैट इन द टाइम टू कम we will take those steps where after 25 years we will be able to repeat a government with our hard work of the organization and of the government. It is possible. So that's something that we need to work on, but we have time. I think we can still do it. 15 महीने में आप लोग अब कोशिश शुरू करने वाले हैं। आपने कहा कि कैसे करेंगे, इसका एक आपने ब्लूप्रिंट थोड़ा सा भेजा है, लेकिन उधर देखिए कि बीजेपी ने ऑलरेडी राजस्थान के, अभी अगस्त का पहला हफ्ता हट जान दीजिए, तो राजस्थान के 2 पूत जो हैं, वो सपूत जो हैं, वो दिल्ली में दिखाई देंगे। धनखड़ साहब हैं, ओम बिरला जी हैं, वो दिखाई देंगे कि राजस्थान की पब्लिक को सिग्नल देखिए बीजेपी उनको कहाँ ले जा रही है। थोड़ा सा डिले में चल रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए मुझे खुशी है कि राजस्थान के 2 लोगों को दोनों सदनों का अध्यक्ष और स्पीकर बनने का मौका मिला है, लेकिन ये पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होते हैं, ये पद संवैधानिक हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी एक पद पे बिठाने से राजस्थान के मतदाताओं को उस पार्टी के तरफ रुझान उनका बढ़ जाएगा। ये उनकी सोच हो सकती है भाजपा की, लेकिन पब्लिक, लोकल क्षेत्र के काम, मेहनत, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, डिलीवरी, प्रॉमिसेस,
उस पर ज़्यादा निर्भर करता है। ये सिम्बलिज्म से बहुत ज़्यादा वोट किसी दल को मिल पाएगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे बल्कि मैं समझता हूँ राजस्थान बहुत भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, और लोगों को मौका मिले इसमें किसको एतराज़ हो सकता है, लेकिन जनता के आप कह मिजाज रहे को हैं कि जनता के मिजाज को के समझकर धनखड़ साहब के वाइस प्रेसिडेंट बनाने का कोई इलेक्टोरल इम्पैक्ट नहीं होगा राजस्थान में। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी इसकी उम्मीद कर सकती है, कोशिश कर सकती है, उनकी तमन्ना हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतदाताओं को इतना रुझान इस बात से मिल जाएगा कि भाई हमारे एक पद पे बैठाया है। मान सम्मान बढ़ा है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, मुझे खुशी इस बात की है कि दोनों सदन में राजस्थान के लोग बैठेंगे, लेकिन जब मतदाता बटन दबाने जाएगा तो उसके जहन में और कुछ विचार होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। सिंबलिज्म पॉलिटिक्स में सचिन बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस ने प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनाई, कांग्रेस ने प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बनाए, 3 माइनॉरिटी के राष्ट्रपति आए, ज्ञानी जैल सिंह को इंक्लूड करते हुए प्रथम राष्ट्रपति महिला आई। आप कहते हैं कि सिंबलिज्म का इम्पैक्ट नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी शायद अब इसी सिंबलिज्म में लैग कर रही है, क्योंकि ये भी जरूरी है? Symbolism can be a part of the entire picture, but it can't dictate the political narrative for all times to come. अब हमने प्रणब दा कांग्रेस के थे, वो राष्ट्रपति बने, ऐसा नहीं कि बंगाल हमने स्वीप कर लिया कांग्रेस पार्टी ने। तो मैं नहीं समझता हूँ कि सिंबलिज्म की कोशिश हर दल हो सकता है उसका दोहन करना चाहे, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि धरातल पर जो वास्तविकताएं हैं उससे हम परे नहीं हट सकते हैं। इसलिए मैंने इतना सिर्फ कहा, और मैं उसको दोबारा रिएटेट करता हूँ कि सिम्बलिज्म हो सकता है पॉलिटिक्स में कुछ हद तक लाभ देने की उम्मीद एक दल करे, लेकिन वो पूरा माहौल बदलकर पूरी स्थितियों को उलटफेर हो जाए, ऐसा मैं समझता हूँ होता नहीं है। क्योंकि चुनाव से पहले समीकरण होते हैं, एक परसेप्शन होता है, और धरातल की राजनीतिक वास्तविकताएं अलग होती हैं। उसके आधार पर लोग, मतदाता आजकल बहुत समझदार हैं, लोग सरपंच के चुनाव में, जिला परिषद चुनाव में, एमएलए चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अलग अलग वोट करते हैं। सिंबलिज्म का अगर बात कर रहे हैं उस पर, उदयपुर में जयपुर में आपका नव संकल्प चिंतन शिविर होता है, और उसके कुछ ही दिनों बाद आपका चिंतन का विषय आ जाता है आपके लिए कि उदयपुर में एक हादसा होता है, और आप कन्हैयालाल के घर भी गए थे। क्या उसका इम्पैक्ट होगा चुनाव में? Is that a factor today now? राहुल जी, इस बात में बड़ा That failure to preempt what happened in No, I am very clear on this particular aspect of our society. What happened in Udaipur was by far the most gruesome act of inhuman act of terror Rajasthan has ever seen. No doubt about it. And I think जिन लोगों ने इस हादसे को अंजाम दिया, वो मानव की श्रेणी से बाहर जा चुके हैं। वो उनका तो जो होना है होगा, उनको पकड़ लिया गया है और सख्त कार्रवाई होकर उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन वो एक्ट ऑफ टेरर जिन लोगों ने किया, उसका ये पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या होगा, मैं उस पर चर्चा करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो एक ऐसा घटनाक्रम था जिससे हम सबको बहुत अंदर से झिझोड़ दिया। और ये बात भाजपा, जनता दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये तो आतंकवादी की जो उन्होंने किया, और जो आपने देखा होगा जो उनके हाव भाव थे, मैंने कहा ना, वो मानव की श्रेणी से बाहर जा चुके हैं। तो उनकी तो कल्पना छोड़ दी, उनको तो पकड़ के होगी सजा निश्चित रूप से। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को देखकर इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस क्या होने चाहिए। लोगों के अंदर आक्रोश था और गुस्सा था, मैं समझ सकता हूँ, उस पीड़ा को समझ सकता हूँ। मैं उनके बच्चों से मिला हूँ, जिस तरह का उन्होंने मजबूती दिखाई, जिस दौर से वो गुजरे हैं, हम सब उनके साथ हैं। और उस घटना को बहुत ज़्यादा, उसका फॉलोआउट के बारे में जिंदा मैं, और कुछ भी फॉलोआउट हो, ऐसे लोग जहाँ जहाँ देश में हैं, अगर ऐसी घटना इसके करने की सोचते भी हैं, उनके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसमें कोई पक्ष विपक्ष, विचारधारा, पार्टी, दल की बात ही नहीं है। ये देश के किसी कोने में भी हो, अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो सख्त से सख्त सजा हो और फांसी से कम ना हो, ऐसा मेरा मानना है। सचिन, इन सब यानी ये मुद्दों के अलावा कांग्रेस इन राजस्थान एक ऐसा इशू जिसे हम वी कैन कॉल इट एन एलिफेंट इन द रूम। ये कांग्रेस के हालात कब सुधरेंगे यहाँ पे? हालात, किसने कहा आपको हालात खराब हैं? हालात, लेकिन हर चीज़ को बेहतर करने की गुंजाइश होती है,
जैसा मैंने आपको कहा, मेरी हम सब की चिंता यही है, और मैं समझता हूँ सरकार की भी, संगठन की भी, दिल्ली में भी, जयपुर में भी, कि हमारी पार्टी को दोबारा यहाँ पर जनमानस का आशीर्वाद कैसे मिले. दैट्स आवर प्राइमरी टारगेट राइट नाउ, एंड आई थिंक वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, एंड वट एवर एक्स्ट्रा नीड्स टू बी डन, आई हैव शेयर्ड माई व्यूज़, बट दैट्स the conversation between me and my party leadership. And I think in the next very near future, we will see some actionable points that will be delivered where, you know, we will be able to win the mandate, not just here, but also in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, जो तीनों चुनाव साथ होते हैं. 2018 के आपके कैंपेन के बाद आपके विरोधी भी आपको नकारा निकम्मा नहीं कहते. आपका सवाल क्या है बताओ? मेरा सवाल यही है आपने स्टेटमेंट दिया, सवाल नहीं पूछा. कि आपके विरोधी भी नहीं कहते, ये मेरा सवाल है. ऐसा क्यों है कि विरोधियों में भी आपको कुछ दिखते, विरोधी भी समझते हैं कि यू आर ए फोर्स इन राजस्थान? अगेन दैट्स अ स्टेटमेंट. सवाल क्या आपका बताइए? मेरा सवाल यही है कि जो चीज विरोधी समझते हैं वो आपकी पार्टी क्यों नहीं समझ पाती? ऐसा कहा, पार्टी ने ऐसा कभी कुछ इंडिकेट ही नहीं किया. पार्टी तो हमेशा हम लोग को जिम्मेदारी देती है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमेशा मुझे कहा है कि मैं पार्टी के लिए एक एसेट हूँ, और मैं पार्टी के लिए मिज़ोरम, मेघालय, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, जहाँ मुझे भेजती पार्टी के लिए काम करता हूँ. वोट मांगते हैं, और पिछले 22-23 साल में राहुल जी, जब मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी जो दी है उसको पूरी निष्ठा से और ऊपर वाले की मेहर से सफलतापूर्वक मैंने निभाया है. और मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि सवाल भी क्या है, लेकिन मैं उसमें अपने आप को इंडल्ज नहीं करना चाहता हूँ इस वक्त. एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि आपकी पेशेंस की तारीफ हो रही है, तो ये पेशेंस कब तक? भाई, किसी में अगर कुछ अच्छे गुण हैं और उसकी कोई तारीफ करता है, तो सभी लोगों को उसमें खुशी दिखनी चाहिए ना. अगर कोई मेरा पेशेंस या आपका पेशेंस है, उसमें किसी को एक अच्छाई दिखती है, तो पीपल मस्ट अप्रिशिएट एंड टेक इट इन द राइट स्पिरिट. और मैं समझता हूँ सब लोग खुश भी हैं. और पेशेंस, मैंने फिर कह रहा हूँ राहुल जी, पेशेंस इसलिए मैं समझता हूँ ज़रूरी है बिकॉज I believe what I have suggested in my own way about how we can win the next elections, that has been well received by the party, and we will work together. हम सबका collective objective क्या है? कोई मेरे साथ है, कोई नहीं है, कोई, लेकिन हम पूरा जो हमारा कुनबा है पार्टी का, हम सबका उद्देश्य ये है कि कैसे हम दोबारा इस राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएं. आप मत समझ भूलिए कि केंद्र सरकार हो, भाजपा हो, वो तमाम तरह के आक्रमण कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं. और आप जानते हो भाजपा का एकमात्र एक लास्ट फॉर्मूला रहता है कि ध्रुवीकरण कर दो, आपस में लोगों के अंदर टकराव पैदा हो जाए, जाति, धर्म, भाषा के नाम पर लोगों को आपस में टकरा दें, और वो उसका फिर एक पॉलिटिकल फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं. हर जगह हमने देखा है, उत्तर प्रदेश में देखा है हमने, जब दंगे हुए थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं. लेकिन मैं समझता हूँ अपने संगठनात्मक ताकत से, अपने एक दूसरे के साथ काम करने की एबिलिटी से हम लोग भाजपा को दोबारा यहाँ पराजय दे सकते हैं. और इस काम को करने में हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कामयाब हम हो सकते हैं, ऐसा मानता हूं. यानी एक इम्प्रेशन है दिल्ली में कि द बीजेपी मे नॉट सक्सीड इन राजस्थान, नहीं कर सकती क्योंकि सचिन पायलट को बीजेपी में लाना मुश्किल है. देखिए, आप मत भूलिए, मैं जितने चुनाव मैंने लड़े हैं, हमने भाजपा को करारी शिकस्त दी है. और शिकस्त सिर्फ राजनीति में चुनाव के समय नहीं होती है राहुल जी. 24 घंटे जब वो सरकार में थे, तो वसुंधरा जी को 163 विधायक थे 200 में से. और आप कभी समय मिले उनसे पूछना कि 5 साल उनको मैंने चैन से बैठने नहीं दिया. जब जब वो ऐसा काम करती थी जो जनहित में नहीं था, हम सड़कों पर आए, हमने विरोध किया, हमने उनको हर बाई इलेक्शन हराया. हमने भाजपा को यहाँ पर 5 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद भी कभी चैन से बैठने नहीं दिया. तो भारतीय जनता पार्टी और की जो विचारधारा है, उसके खिलाफ हम लोग पहले भी लड़ते आए हैं और आज भी लड़ रहे हैं. और मैं मानता हूँ कि बीजेपी को लगता है कि जनता हमारी जेब में है. नींबू 200 रुपये किलो हो जाए, सिलेंडर 1100 रुपये किलो हो जाए, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो जाए, बेरोजगारी हो जाए, महंगाई कुछ भी हो जाए, लेकिन जनता में वोट डालेगी. ये धारणा उनकी बहुत बड़ी अतिशोक्ति है मन में कि पब्लिक हमेशा हमें वोट डालेगी. ऐसा होता नहीं है. आप डिलीवर नहीं करेंगे, नौकरी नहीं देंगे, इकोनॉमी का पूरी कमर टूटी हुई है, डॉलर 80 रुपये हो गया, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है. लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जनता के सामने जाके वास्तविकता में बताएं. ये सारे नौजवान बैठे हैं, ये 2-4-5 साल के बाद कहाँ नौकरियाँ करेंगे? नौकरियाँ ख़त्म कर रहे हैं. आप रेलवे लाइन, हवाई जहाज, हवाई अड्डा, खान सब बेच दिया आपने, LIC को बेच, आप सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं, डिलीवर कर नहीं रहे.
और फिर आप सोचेंगे कि अंत में लोग जज्बात में हमको दोबारा वोट डाल देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए सचिन, क्या है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, ये बात सही है कि आप लोग, ऑपोजिशन कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, यानी दिल यूपी में हुआ था कि यूपी में काबा, वहाँ सब बा, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि इवेंचुअली वोट मिल रहा है। अब आप बीजेपी की शिद्दत देखिए जीतने की, कि वो चुनाव उत्तराखंड में जीतने जाते हैं, वो 3 मुख्यमंत्री का एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो गुजरात में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलते हैं, उनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कि वो पूरे गुजरात में और यूपी में तमाम जगहों में 40%, 50% बार बार लगातार हारे हुए लोगों को हटा देते हैं, टिकट नहीं देते, नहीं करते हैं। क्या वो कटिंग एज कांग्रेस को कहीं ना कहीं डिप्लॉय करनी पड़ेगी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यू कमेंट ऑन द ब्रॉड टेम्पलेट्स विच आई हैव गिवन, मगर क्या कांग्रेस के अंदर वो एक किलर इंस्टिंक्ट आना पड़ेगा कि चुनाव जीतना भी जरूरी है? नहीं, राहुल जी, चुनाव जीतना जरूरी हो सकता है, लेकिन एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को अगर दिन में 24 घंटे सिर्फ चुनाव जीतना, विपक्ष को दबाना, नेताओं को हैरेस करना, अगर यही उनकी परिपाटी बन जाएगी और गवर्नेंस साइड में हो जाएगी, गवर्नेंस इशू साइड में हो जाएंगे, पब्लिक की एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जॉब्स, इस पर चर्चा नहीं होगी, काला धन वापस नहीं आएगा, निवेश होगा नहीं, चीन सीमा में घुस जाएगा, तो अल्टीमेटली कब तक चलेगा? एक political party is not a platform of only winning elections. Once you have voted to power, you have to deliver. Governance means commitments to people. अब आपने कहा ठीक कहा, बीजेपी चुनाव जीती उत्तर प्रदेश में, लेकिन राजस्थान उत्तर प्रदेश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ मल्टी पार्टी, अलग अलग कास्ट कॉम्बिनेशन जो भी उन्होंने किया, कभी अलग अलग, I think, and I'm saying this to you, Rahul ji, I believe UP government and its chief minister have acted beyond the ambit of law many times, which may give them political dividend today, but in the long run, we are setting the bar very low for others to follow. So I think there is a constitutional discharge of responsibility every administrator has to conduct. There is a precedence of how people in position have to abide by the rules and laws. And सिर्फ चुनाव जीतना ही अगर हमारा अल्टीमेट एम बन जाएगा, not people, not delivery, not social justice, not economic development, मेरी जो जनरेशन के लोग हैं, राहुल, ultimately people of my generation will be judged by how much economic opportunity we are able to provide to our voters. 75 साल के बाद this country has not been able to achieve its full potential. We must work towards it. If winning an election is the only criteria, then I think our democracy needs to have a rethink. People have to deliver. अब यह आप कह रहे हैं, ठीक है, बीजेपी सरकार दिल्ली में रिपीट हुई है, जनता जनार्दन है, जिसको वोट पड़ेगा उसको हम जीता हुआ मानेंगे, लेकिन इतने बहुमत के बाद भी आपका अगर जो डिलीवरी है, पैमाने देख लीजिए आप किसी चीज़ में, एजुकेशन, सैनिटेशन, अलग अलग क्लेम्स आ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अभी अग्निवीर लगा दिया है सेना के ऊपर। आई मीन देयर आर इन्यूमरेबल इश्यूज दैट नो वन इज आंसरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप बता रहे हैं महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही क्योंकि वित्त मंत्री जी बीमार हैं। वित्त मंत्री बीमार है तो महंगाई तो रोक नहीं रही है। सो आई एम सेइंग द हैबिट ऑफ answering questions in parliament, doing a press conference, being accountable to the people of India, that spirit is lacking. लेकिन मीडिया में पूरा आप छाए हुए हैं, आप भाषण दे रहे हैं, लोगों को भ्रमित भी कर रहे हैं, बट जो मिडिल क्लासेस हैं, जो गरीब तबका है, जो किसान वर्ग है, उसका पेट दर्द कर रहा है। और उस पीड़ा को अगर हम उजागर करना चाहते हैं तो फिर आप तमाम एजेंसीज का भी पूरा कर रहे हैं पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिकरण कर कर एजेंसीज का अगर हम करेंगे तो ये फिर कहाँ जाके बात रुकेगी, बताइए मेरे को। सचिन, ये बात सही है। देखिए, आप प्राइस राइज का इशू है और आप तो अभी यानी थोड़ी हल्की सी जेल की सजा काट के आए हैं। जेल नहीं गया मैं, थाने गया था भाई। थाने, वो यानी कहने में अच्छा लगता है ना, थोड़ा जेल काट के आए हैं। हमें डिटेन किया था तो हाँ, डिटेंशन था। चलिए साहब, तो ये जेल तो मुझे वसुंधरा जी ने भेजा था 3 दिन के लिए। हाँ, नहीं, आपने तो एक सेंट्रल जेल जयपुर में। एक बार यानी आप अभी भी बहुत जवान है, लेकिन काफी और जवानी में भी आपने लाठी वाठी भी खाई थी एक आंदोलन के दौरान। लेकिन बहरहाल परेशानी यहाँ पे ये है कि क्या ये जो कांग्रेस का जो अभी रवैया दिखा, आप लोगों ने बड़ा जबरदस्त अनशन जो किया और सत्याग्रह पे रास्ते पे लौट रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि देश के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर कांग्रेस को अनशन के रास्ते पे उतरना पड़ेगा? सोनिया गांधी का ईडी में जाना
आप लोगों को अनशन सत्याग्रह का रास्ता दिखा देता है, महात्मा गांधी याद आ जाते हैं, और आप कहते हैं कि इसमें प्राइस राइज का मुद्दा भी जुड़ा है। क्या आपको नहीं लगता कि पब्लिक के अंदर, जो पब्लिक आप कह रहे हैं भ्रमित हो जाती है, मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता कि पब्लिक भ्रमित होती है, लोकतंत्र में पार्टियां ही भ्रमित होती हैं, नेता ही भ्रमित होते हैं, लेकिन अगर पब्लिक मैंडेट उनके साथ है तो क्या आपको उस मैंडेट को और अपनी नैरेटिव को बेटर बनाने के लिए आपको जनता के बीच में, जैसे आप पिछले कुछ दिनों में देखे हैं, वैसे लगातार दिखना होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आई टेक योर पॉइंट, लेकिन जो हम लोगों ने बात रखी राहुल जी, बड़ा मैंने कहा किसी एक नेता की बात नहीं है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है। पिछले 8 साल में ये तमाम जो एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ईडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज हैं। 8 साल में it can't be a coincidence that not a single person close to the powers in Delhi has ever been questioned, summoned, raided, charge sheeted, asked questions. It is only the opposition, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, विपक्ष को सिर्फ डिमोरलाइज करने के लिए, डिफेम करने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारा एक वैचारिक विरोध है। उस विरोध को हम अगर प्रकट करना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, व्रत रखना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं, पदयात्रा निकालना चाहते हैं, उसको आप अलाउ नहीं करेंगे। आप बल प्रयोग करके नेताओं को 60-60 एमपीओं को बस में बैठा के ले जाएंगे थाने के अंदर, और इतना हमारा जो दिल्ली का कांग्रेस का कार्यालय है, मुख्यालय, वो छावनी में तब्दील हो गया है। सैकड़ों पुलिस वाले खड़े हैं। अपने पार्टी के ऑफिस के अंदर बैठ के हम अगर कोई भजन गाना चाहते हैं या विरोध करना चाहते हैं, उसकी परमिशन नहीं है। तो ये जो रवैया है कि पार्लियामेंट में एमपी को सस्पेंड कर देंगे, आप 20-20 सांसदों को सस्पेंड कर देना, पार्लियामेंट के बाहर नेताओं को उठा के ले जाएं, और तो फिर लोकतंत्र में अपनी बात रखने का विपक्ष पे क्या जरिया है? और राहुल, मेरी बात सुनो, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 423 या 425 सांसद कांग्रेस के थे 84 में, बीजेपी के 2 सांसद थे। क्या विपक्ष को हमने खत्म कर दिया था? क्या राजघाट पे बैठ के बीजेपी के नेता भाषण नहीं देते थे? क्या उनको इजाजत नहीं थी पदयात्रा करने की, धरना करने की? तो वो मैं कह रहा हूँ, माहौल जो ऐसा बन गया है कि आप विरोधियों को सुनने की भी आप में क्षमता छोड़ दी, बोलने की आप अगर परमिशन नहीं देंगे तो विपक्ष कहाँ जाएगा? 1962 में इस देश का पहला सांसद मार्शल्स द्वारा हाउस से बाहर फेंका गया था। 1989 में इसी 400 से ऊपर की पार्टियों की पार्टी में ठक्कर कमीशन जो बना था इंदिरा गांधी जी की हत्या पे, उसकी रिपोर्ट को लेकर के 23 नहीं 63 एमपीज लोकसभा से बाहर किए गए थे। क्या है कि सीबीआई, ये एक्सपल्शन, ईडी, सीबीआई, ये सत्ता की मलाई है साहब, जो भी रहता है थोड़ा थोड़ा इनका स्वाद कर लेता रहता है। तो ये बात मैं मान रहा हूं कि जो अभी हो रहा है वो गलत है, मगर लोकतंत्र की सचिन ये बात है कि जो कुप्रथाएं आप शुरू करेंगे या जो आदत शुरू करेंगे वो आदत ही बन जाती है। और शायद ये एक उदाहरण है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक सबक है, शायद ऐसी शुरुआतें ना की जाए। लेकिन बहरहाल आपने राजीव जी का नाम, आपने राजीव जी का नाम लिया, एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ राहुल जी। आपने कहा कि पहले भी ऐसा हुआ, विपक्ष के साथ ऐसा हुआ। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जब विपक्ष, कांग्रेस सत्ता में रही और भाजपा विपक्ष में थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे, वो बीमार पड़े, राजीव गांधी जी ने फ़ोन करके उनको कहा कि आप अपना इलाज विलायत में कराइए। उनको अमेरिका भेजा गया, पूरा खर्चा राजीव गांधी सरकार ने दिया। एक शिष्टाचार, एक आदर मान सम्मान होता है। आप विपक्ष को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें और लगातार करते रहें तो आपकी अनबन हो सकती है। आपने कहा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पहले भी सस्पेंड किया होगा, लेकिन इस वक्त जो शिकंजा टाइट किया जा रहा है ना बोलने के लिए, वो आज से पहले नहीं था। जो माहौल आज है, आज सब लोग व्हाट्सएप कॉल क्यों करना चाहते हैं? आज कोई किसी से खुल के बात करना क्यों नहीं चाह रहा है? आज हम विरोध प्रकट करने में संकोच क्यों करते हैं? आज जितने उद्योगपति हैं सब हर बजट को 10 में से 11 नंबर देते हैं और बंद कमरे में बुराइयां करते हैं। तो ये जो माहौल बना है, ये बहुत ज़्यादा दिन ये प्रेशर चल नहीं पाएगा, ये मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है आपकी सोच कुछ और हो। बिल्कुल, और आप पत्रकारिता करते हैं। मैं, जैसे हम आज इस शो में बैठे हैं, टॉक जर्नलिज्म, यहाँ पर खुली चर्चा होनी चाहिए। अगर मैंने कुछ गलत किया है या मैं करने जा रहा हूँ, मेरी आलोचना भी होनी चाहिए और मेरे में इतना गुदा होना चाहिए कि मैं सुनूं मैंने क्या गलत किया है। और मैं या कोई भी हो, व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो तो विनम्रता से माफी मांगने की मैं ये हिम्मत कह होनी सकता चाहिए। हूँ यहाँ पे कि अगर आप अगली बार सीएम बनते हैं तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जो अभी पत्रकार हैं, जो बनने वाले हैं, उनका स्वर दबाने की बात नहीं करेंगे।
राहुल जी, भविष्य में क्या होगा ना तो आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं, नहीं। व्यक्तिगत कमिटमेंट कर सकता हूँ। हाइपोथेटिकल मैंने सवाल का तो जवाब दे मैंने दीजिए आप। हाइपोथेटिकल का कोई जवाब ही नहीं होता। यानी हाइपोथेटिकल ये तो यहाँ कोई पे यक्ष प्रश्न है, इसलिए सचिन नहीं, इसका जवाब नहीं मैं देंगे। ऐसा मानता हूँ कि मैं केंद्र में सत्ता में भी रहा हूँ, मैं राज्य में सत्ता में भी रहा हूँ, नहीं, विपक्ष में भी रहा हूँ। सचिन दिल्ली में पत्रकारों के बीच में काफी पॉपुलर हैं और शायद इसका इनके पार्टी के विरोधी इसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन मैं सवाल दूसरा करना चाहता हूं। मेरा सवाल यहां पे यह है कि आपने राजीव जी का नाम लिया। कांग्रेस में एक बहुत अच्छी प्रथा रही है कि हर रेस्पेक्टिव पीरियड में एक लीडरशिप को जन्म दिया गया। इंदिरा जी को देखिए तो प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति बने, उनके समय पे सामने आए थे। राजीव जी का समय लीजिए तो दिग्विजय सिंह आपके पिताजी, ये उस समय के राजनीतिक नेता थे, दोज हु वर द लीडर्स फॉर टुमारो। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में एक 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 इमर्जिंग टर्फ है जिसके अंदर कांग्रेस श्रिंक हो रही है और उस श्रिंकिंग टर्फ में, सिकुड़ते मैदान में यंग जो लीडर्स हैं उनके लिए एक क्राइसिस दिख रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत प्रॉमिसिंग नेता थे कांग्रेस के, बढ़ावा मिला उनको, लेकिन बाद में एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन आया। जितिन प्रसादा, अशोक तंवर राजस्थान में, मिलिंद देवरा जो हैं हरियाणा में, मिलिंद देवरा, एक क्राइसिस ऑफ द यंग। मैं और इसमें मैं ये भी कहूंगा कि इवन राहुल गांधी 2000 के 19 के चुनाव के में जब उन्होंने पहली सीडब्ल्यूसी की बैठक की थी, उन्होंने ये कहा था कि कुछ ऐसा लगता है कि पीपल वर मोर बॉदर्ड अबाउट देमसेल्व्स देन द पार्टी और टेकिंग ऑन द बीजेपी एज ऑन द होल। क्या आपको लगता है कि ये इशू सेटल करना पड़ेगा कि इस पुश्त की कांग्रेस के नए अगले नेता अगले 40 सालों के लिए कौन है? देखो राहुल जी, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। जब समाज बदलता है, वातावरण बदल रहा है, तो उसके साथ गति रखना बहुत अनिवार्य है। और कांग्रेस हमेशा वो पार्टी रही जिसने अलग अलग दशक में अलग अलग नारे दिए, अलग अलग नेताओं को डेवलप किया, एक अलग फेस प्रेजेंट किया। राजीव जी ने कंप्यूटर की बात जबकि जब लोग कल्पना नहीं करते थे। तो हमें वी हैव टू कीप ahead of the times, and in public discourse political narrative is very important, and I take your point that the Congress party of course has done in the past but needs to do more in the future to develop different states a second rung, a third rung leadership, because नेता जो है ना राहुल जी, आजकल कितना भी आईटी का ज़माना हो, व्हाट्सएप सोशल मीडिया हो, लेकिन नेता ओवरनाइट नहीं बनते हैं। नेताओं को एक प्रोसेस से निकलना पड़ता है, उसमें 5, 10, 12, 15 साल के बाद एक नेता परिपक्व होता है, समझ आती है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बीज बोना पड़ता है, लेकिन सचिन 100% आई एग्री विद यू। सो आई एम सेइंग मेंटरिंग, यस, पुराने नेताओं को आने वाले नेताओं को के बीज बोने होते हैं, उसमें पानी डालना होता है, सींचना होता है, तभी अगली पुष्ट तैयार होती है। भाई मेरे को पार्टी ने टिकट दिया, मैं 26 साल का था, मैं कम उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बन गया। राहुल जी, हमारे यहाँ लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, तो मैंने दिल्ली बात करके अब बोला, मैंने कहा भाई अब यहाँ लोकल बॉडी के चुनाव होंगे, तो मैंने एक नारा दिया था उस टाइम अपनी पार्टी के अंदर कि 40 बिलो 40, यू गिव 40% टिकट्स टू पीपल हु आर बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज। तो उसमें क्या है, मेयर, कॉरपोरेटर, प्रधान, प्रमुख, वो यंग लोग बने जो अगली फिर राजनीतिक चैलेंज को लेने के लिए अपने अंदर काबिलियत ढूंढ सकें। और विधानसभा चुनाव हुए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमने प्रमोट किया, जो यंग लोग हैं, क्योंकि जब मतदाता नौजवान है, पार्टी नौजवानों की बात करती है, और हम उनको अग्रिम पंक्ति में लाने ना दें, सिर्फ नारे लेते रहें, भीड़ इकट्ठी करवा लो, दरी बिछा लो, भाषण दिलवा दो, लेकिन उनको कलम में ताकत नहीं देंगे, देन हाउ आर वी डूइंग जस्टिस टू इट? सो आई एग्री दैट वी हैव टू प्रमोट यंगर पीपल एंड ट्रस्ट देम। होता क्या है, हम समझते हैं कि यार ये तो 25 साल का ये है लड़का लड़की, ये कर नहीं पाएगा, बट वी हैव टू हैव ट्रस्ट, and unless you give opportunity with full faith and freedom and to act, they can't deliver. I am of the opinion that younger people need to be developed in the Congress also in different states, so that after 4, 5, 10, 15 years, we have a second, third, fourth generation of leaders who can take on the opposition and fight from the front. I take your point. I think we have to do more of this. टीम वर्क की बात हो रही है राजस्थान में, टीम वर्क बड़ा जरूरी है। टीम वर्क के साथ साथ आपको क्या लगता है कि ऐसा कांग्रेस को यहां राजस्थान में अगले जो देखिए, बीजेपी विल हिट यू लाइक अ ट्रक इस प्रदेश में अगला। ये बीजेपी ने has been hitting us like a truck before also. They hit us like a truck in 2018, and what happened? We from 21 went to 100 but they seats. won 25 seats in 2019. यानी सत्ता में रह के लोकसभा हार जाना is worse than सत्ता से बाहर होकर लोकसभा हार जाना।
यानी मैं तो कहूँ very honestly, sir. हारना ही बुरा है, सत्ता में हो या यानी नहीं, आप we must not आप lose. कह रहे हैं कि साहब आपको चुनाव में नुकसान हुआ, आप इस्तीफा दे आए, हमने और इस्तीफे नहीं देखे, इसलिए बहरहाल द पॉइंट हियर इज कि क्या आपको लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस का काडर में भी एक सेंस ऑफ डिस्पोंडेंस आ रहा है? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं समथिंग नीड्स टू बी डन टू पुल अप द पीपल? और ये कांग्रेस का राजस्थान में नहीं है, अगर मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र में जिस तरह से देखिए हालात गुजरे हैं, वहां स्थिति खराब है। आप पूरे देश का कश्मीर से लेकर के केरल तक अगर देखें तो कुछ राज्यों को छोड़ के, यानी गनीमत है कि राजस्थान में आप जैसे नेता हैं, गहलोत साहब हैं, बाकी अगर मैं कहूं कि नेता बताइए तो ढूंढते रह जाओगे, वो जो एड लाइन है वो चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वी हैव आवर इलेक्शंस राइट नाउ, हमारे यहाँ हो रहे हैं। अगस्त के महीने में नए लीडरशिप बनेगी जिलों में, प्रदेश में, थ्रू आउट इंडिया, एआईसीसी में, वर्किंग कमेटी में। ऑल दोज चेंजेस आफ्टर उदयपुर चिंतन शिविर जो हम लोगों ने किया, उसमें 50% ऑफ ऑल पोस्ट विल बी गिवन टू पीपल ऑफ यंग जनरेशन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। ये संकल्प हमने घोषित किया, फिर डिफरेंट स्टेट्स में इसके बाद हमने उसका क्रियान्वयन भी किया। एंड यू विल सी द रिजल्ट्स ऑफ ऑल दैट इन अगस्त व्हेन पीपल आर गिवन पोजीशंस एंड अपॉइंटमेंट्स इन एआईसीसी, वर्किंग कमेटी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। तो हमारा पूरा बहुत बड़ी पार्टी है। और अब ये जब लीडरशिप ने, मिसेस गांधी ने, राहुल जी ने एक रेजोल्यूशन पास किया है फॉर्मली उदयपुर में कि आधे से ज़्यादा सीटें हम लोग 50 या उससे कम उम्र के लोगों को देंगे, इससे बड़ा कमिटमेंट पार्टी क्या कर सकती है? एंड टाइम हैज़ कम नाउ, अगस्त में पूरा ये घोषणाएं होनी है हमारी। आपने बीबीसी में कितना टाइम इंटर्नशिप की थी? कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ चंद महीनों के लिए, चंद महीने, यानी 1 2 4 6 4-5 महीने। काफी बिगाड़ दिया इस पीरियड ने आपको, क्योंकि आप सवालों को यानी डिफ्यूज करते हुए चले गए हैं अभी तक। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से इसको लंबा खींचने की जगह मैं ये कहूंगा कि राजस्थान इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल बैटल। बहुत सारी जगह जहां चुनाव होने हैं वहां हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का स्ट्रक्चर, कांग्रेस सत्ता में नहीं है या कांग्रेस का स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। राजस्थान में पत्रकारों के लिए इलेक्शन इज गोइंग टू बी ए वंडरफुल पीरियड, क्योंकि उनको बीजेपी का यहाँ पे खूबसूरती ये है कि दोनों ही जो मेन ग्रुप हैं, जो यहाँ के मेन कंटेस्टेंट्स हैं, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी आग सुलगी अंदर अंदर दोनों तरफ है, और कॉन्टेस्ट दोनों के बीच में टक्कर का होगा। सचिन कह रहे हैं कि 25 साल बाद दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए बदलाव की जरूरत होगी। बीजेपी के अंदर बदलाव की बातें काफी लंबे समय से चल रही हैं, ये देखना होगा कर पाएगी कि नहीं। बट व्हाट आई विल टेल एवरीबडी हियर दैट आफ्टर स्पीकिंग टू सचिन, व्हाट आई फील वेरी स्ट्रांगली is that a new set of leadership needs to emerge in almost every field. I am close to retirement now, and I feel that there are some very young, good journalists. उनमें से काफ़ी सारे यहाँ आने वाले हैं, हमारे यहाँ लल्लन टॉप से सौरभ द्विवेदी यहाँ आने वाले हैं. These are bright young journalists, these are bright young politicians, and I think eventually one generation needs to move away to make space for the new one. Until that doesn't happen, I think there will be stagnation, politics, journalism, and everything else. Thank you very much. But I know, let me also thank Rahul ji. ये दिल्ली से चल कर आए हैं, कल रात को 3 बजे जयपुर पहुंचे हैं और आज सुबह नहा धो के मेरे से सवाल पूछने के लिए यहाँ पर आए. और राहुल जी को मैं बहुत लंबे अरसे से जानता हूँ. जब मैं संसद में नहीं था, राजनीति में शायद नहीं था, फिर मैं MP बना, मंत्री बना, विपक्ष में रहा, पक्ष में रहा, लेकिन ऑल थ्रू आउट राजनीति में आप कड़े से कड़ा सवाल पूछो, कोई दिक्कत नहीं. आई थिंक बट जिस अंदाज से लोग सवाल पूछते हैं उसमें वो तीखापन होना चाहिए, लेकिन वो आक्रमण वाली जो भावना वो नहीं होनी चाहिए. वो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट राहुल जी ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि थ्रू आउट हिज करियर, कोई चैनल हो या व्यक्तिगत बात हो, बड़ी शालीनता से, और आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी. वो मैं बच गया मेरे ऊपर है, लेकिन आपने पूरे दागे जितने आप दागते रहे सवाल. सो ये एक हेल्दी बैंटर लोगों के बीच होना चाहिए. एंड आई थिंक मोर पीपल, मोर जर्नलिस्ट, मोर पॉलिटिशियंस, मोर पीपल इन पब्लिक स्पेस must come forward, because people of India want to hear new ideas, new thoughts, and good or bad, let's hear. अगर हम सुनेंगे ही नहीं, हमारे विरोधियों की आवाज़ को सुनना हम पसंद ही नहीं करेंगे, तो हम एक बेहतर संवाद कैसे कायम करेंगे? Unless we debate and discuss and come out with the best. इस देश के लिए बेस्ट क्या हमें ये चाहिए. विचारधारा 100 हो सकती हैं, लेकिन भारत एक है, ये मुल्क एक है, देश एक है. इसके लिए जो बेस्ट हो वो करना चाहिए. मुझे फ़ायदा हो ना हो, किसी को नुकसान हो ना हो, लेकिन फॉर कंट्री वी नीड पीपल इन ऑल फील्ड्स इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट्स to come forward, be objective, keep nation first,
and talk with humility and sense, which I think Rahul ji has done. So thank you very much, Rahul ji. थैंक्स। मैं बस आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि समाज में मैं बहुत चीज़ें देख रहा हूँ और पत्रकारों को भी कहना चाहूँगा कि द मोटो शुड बी कि जो मीठा बोले उसकी मिर्ची खरीद लो, जो कड़वा बोले उसका शहद रिजेक्ट कर दो। आई थिंक आवर सोशल प्लेटफॉर्म्स, पॉलिटिक्स, एवरी To present the memento, please. To Rahul Srivastava, sir. Thank you very much. Thank you very much.